مرسو سندھ رسو نامنظور نامنظور PII نامنظور نامنظور PIDA نامنظور 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 PIDA نامنظور سندھ جے بیٹن سان دشمنی نامنظور مرسو 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 سندھ کے جزائر پہ قبضہ ہماری دھرتی پہ قبضہ ہماری زمین پہ قبضہ ہمارے حقوق پہ قبضہ مرسو 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 دوستو اج کو پان گٹھیا آج today we have gathered here outside Pakistan's embassy in Washington DC behalf of Sindhi Association North America اور ہم آج یہاں پہ احتجاج کرنے آئے ہیں احتجاج کرن آیا ہوں وفاقی حکومت جو آرڈیننس جاری کیا ہے which seeks to occupy our islands the coastal belt of Sindh Balochistan اس کی ہم مذمت کرنے آئے ہیں اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے ہیں تو ہم شکر گزار ہیں پاکستان پروگریسو الائنس کی ڈاکٹر غزالہ قاضی خاور رضوی صاحب اور ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب ان سب دوستوں کا جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور سب سے پہلے آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے سائیں خالد ہاشمانی صاحب کو آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں سائیں خالد ہاشمانی صاحب کی گزارش ہے تو اپنے خیالات اظہار کریں السلام علیکم دوستو I'm going to mix 3 languages, English, Urdu and Sindhi, the common language that we all understand. The reason we have gathered here is because illegally government of Pakistan, President of Pakistan has introduced an ordinance under which ordinance calls for forcibly occupying the lands of 2 islands off the coast of Sindh and builds concrete jungle and at the cost of environment, at the cost of natural life there. There are a lot of very rare fish life there. Sindhi baat kare. ہاں دوستو وڈی مہربانی تव्हां کٹھا تھیا آहियो اڄ نہیں کرے تے اچي گڏ تھیا آहियूं ته جيئن اسين پنهنجو پروٹيسٽ ان ڳالهه ته ڪيون ته پاڪستان گورنمنٹ جيڪو آرڊيننس پاس ڪيو آهي ٻن آئيلينڊز کي تے قبضے کرن جو ان جي خلاف اسين تے مظاهرو ڪري پيا آهيون پاڪستان ایمبيسي تے واشنگٽن DC جي سامهون ان جي خلاف مظاهرو تا ڪيون انهن کي اهو ٻڌائڻ تا چاهيون ته اسان ڪڏهن پنهنجن حقن تے ہمیشہ وڑھندا رہنداسين ڪڏهن به انهن کان اسان پاسو نه ڪنداسين سو اها ڳالهه ياد رکن ته هو سمجھندا ته कंहिं بېمانيءَ سان يا कंहिं ٽرڪ سان يا कंहिं ٽرڪيءَ سان اسانجي رائٽس تے ایکسپلائٹ کندا اسی وہ قبول نہ کنداسين ۽ اها جنگ ہمیشہ رہندي جيستائين هو اسان کي ايڪول رائٽس نہ ملندا مهرباني تھینک یو ہاشمانی صاحب اب میں گزارش کروں گا پاکستان پروگریسو الائنس کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر غزالہ قاضی صاحبہ کو آئیں اور ان کا اور بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے آئیں اور آپ اپنی بات کریں غزالہ قاضی ہوں میرے ساتھ عاصم یوسفزئی بھی ہیں وہ سیکرٹری آف ہماری آرگنائزیشن کے سیکرٹری ہیں پاکستان پروگریسو الائنس ثنا کے ساتھ اور سندھ کے سارے غریب لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں جن کے حقوق کے اوپر جن کی زمین کے اوپر اس وقت وفاقی گورنمنٹ کا قبضہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم لوگ ہر فورم میں اس کو لے کے جائیں گے ہم لوگ پروگریسو پاکستان الائنس جو ہے وہ ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم لوگ اس بات کو ثنا کو ہم اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ کے بلوچستان کے اور پنجاب کی زمینوں پر اور غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے اوکاڑا کے فارمرز کی اور اوکاڑا کے لینڈ کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ابھی تک وہ لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ پھر ایک
मुबारक नामी गांव है सिंध का और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर कब्जा करके इन्होंने मछेरों को उस गांव से निकाल दिया है और निकाल के उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। और इसी ये डेवलपमेंट जितनी हो रही है हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये ज़मीन उनको बिलोंग नहीं करती, ये ज़मीन उनकी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये सिंध की ज़मीन है और ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और उन सब की ज़मीन है। और हम लोग इस बात के बहुत सख्त खिलाफ, इस आर्डिनेंस जो उन्होंने बनाया है इस वक्त जो आइलैंड की डेवलपमेंट के लिए, हम उसके खिलाफ हैं। और ये पाकिस्तान के जो आइन है ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो ये लैंड जो है वो बिलोंग करती है सिंध को। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम गुजारिश करेंगे जनाब सोहेल अंसारी साहब को, जो सेंट लुइस से आए हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। साईं सोहेल अंसारी साहब की गुजारिश है तो अपने ख्याल इज़हार करें। मेहरबानी दोस्तों और मीडिया के दोस्तों जो शामिल हुए हैं और सारे दोस्त जो हमारे इस प्रोटेस्ट में आज हमारे साथ शामिल हैं। मैं लतीफ़ साई की इस शेर से आगाज़ करूँगा। वॾा वण वरकार जा जिते नांग सूजन नीरा, उते अब्दुल लतीफ़ जय रस रहबर राह में। ये पुकार उन गरीब मछेरों की है जिनका रिश्ता सिंध के दरियाओं और लहरों से है, इस समंदर की लहरों से है। ये पुकार उस हर जानदार चीज़ की पुकार है जो इन जजीरों पे अपना जीवन रखती हैं और सदियों से अपने जीवन को बचाए हुए हैं। दोस्तों, ये पुकार हर जमहूरियत के हामी की है, ये पुकार पाकिस्तान के चारों सूबों की है, ये पुकार सिंध की है, ये पुकार पंजाब की है, ये बलूचिस्तान की भी पुकार है और ये पख्तूनख्वा फ्रंटियर की भी पुकार है कि हम इस नाम नेहाद ऑर्डिनेंस, इस इल्लीगल ऑर्डिनेंस को नहीं एक्सेप्ट करते। इस किस्म की डेवलपमेंट को हम नहीं। जज़ायर पे कब्जा, जज़ायर पे कब्जा, हमारे वसाइल पे कब्जा, सिंध पे कब्जा, धरती पे कब्जा, जमीन पे कब्जा। दोस्तों, ladies and gentlemen, I want to tell you that there is nothing legal about this ordinance. There is absolutely nothing. This ordinance has no place. It is a betrayal of the Constitution of Pakistan. It's a blatant betrayal of the rule of law. So our voices need to be heard. It's a matter of time that this ordinance will be defeated. Islamabad has forgotten that we all come from the same strain of blood that defeated General Zia's 11 years of martial law. We defeated the illegal barriers that were put on 18th Amendment. We defeated Ayub Khan's one unit. We have also defeated Musharraf's illegal onslaught on top of the legal institutions of Pakistan. So rest assured, this ordinance will be defeated. It will be defeated with the people of the power of the people, with the people's power of Pakistan, and we will not accept this illegal. Marsu, 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 marsu. In the end, I would like to say, we today are united. Today we are one voice. Today we have one demand. Islamabad, take back this ordinance. Take back this ordinance. Thank you very much. Thank you. Now I request our senior leader, Sana's former president, Sain Iqbal Tareen Sahab, please come and share your views on this issue. मुझे दोस्तों, साथियों, असांजा हमवतनो, असांजा भेनरो भावरो, अॼोको ॾींहुं हिक लिहाज़ खां तमामु अफ़सोसनाक ॾींहुं आहे जो अगस्त 31 ते पाकिस्तान गवर्नमेंट हिकिड़े ऑर्डिनेंस जे तहत illegal, unconstitutional, immoral act
जेको परपिट्रेट कयो आहे सिंध जे ख़िलाफ़, बलूचिस्तान जे ख़िलाफ़, असीं उनजी मज़म्मत कयूं था। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ऑर्डिनेंस, governing by ordinance, is actually a shameful violation of the democratic process. जहां डेमोक्रेसी खत्म होती है, जहां बातचीत खत्म होती है, जहां अक्ल नाकाम हो जाता है, वहां डिक्टेटरशिप स्टार्ट होती है। और ऑर्डिनेंस इज डिक्टेटोरियल डिमांड, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जब आपके पास पार्लियामेंट है, जब आपके पास सेनेट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, तो ये ऑर्डिनेंस कहां से आया? Shame, shame, shame. पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 172, 97 and 142 के तहत फेडरल गवर्नमेंट अभी वो कंकरेंट लिस्ट नहीं रही। अब वो अयूब का राज, यहया का राज, मुशर्रफ का राज नहीं रहा। अब हमारे पास कोई कंकरेंट लिस्ट नहीं है। अब फेडरल लिस्ट है, लेजिस्लेटिव लिस्ट है, जिसमें कहीं भी मुझे दिखा दे, हमारे मीडिया के, यहाँ के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया के लोगों को कहीं दिखा दीजिए कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकती है। दिखाया हमें आर्टिकल 239 सेक्शन 4 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, टेम्पररी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन आप जब आईन को ऑल्टर करेंगे, अब जब आप प्रोविंशियल टेरिटरी को ऑल्टर करेंगे, तो आपको प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी में आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये ऑर्डिनेंस itself is unconstitutional, immoral, and it's mute. It doesn't mean a thing. इसमें आप इस ऑर्डिनेंस को लेके आप जो है कागज में पकौड़े जहां बांधे जाते हैं, वो लेके उसमें पकौड़े बांधे और वो सेल करें। Shame, shame. कोई आईनी हैसियत नहीं है, इसकी वायोलेशन आईनी है, लेकिन इसका वजूद आईनी नहीं है। इसकी मज़ाहमत आईनी है, लेकिन इसका वजूद आईनी नहीं है। हम कोई गैर आईनी बात नहीं करना चाह रहे। हम अगर सिंध की बात करना चाह रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम पंजाब के खिलाफ हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि हम बलूचिस्तान के खिलाफ हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हम पश्तूनों के खिलाफ हैं। भला आप हमें बताइए, खुशहाल खान खटक और गुल नसीब में कौन सा इख्तलाफ? भिटाई और बुल्ले शाह में कौन सा इख्तलाफ? कौन सा इख्तलाफ? मुझे ये बताइए, जो आदमी कोयटा में रेहड़ी पे किशमिश और बेचता है और अखरोट बेचता है, उसका कराची में जो गोलगप्पा बेचने वाले रेहड़ी वाले आदमी से क्या इख्तिलाफ? जब से पाकिस्तान बना है, आपने अपने आकाओं की तरह, ब्रिटिश की तरह आपने हमें डिवाइड किया। सिंध के अंदर दहकान और पंजाब के दहकान में क्या इख्तिलाफ है? इंटेलेक्चुअल्स, ऑनेस्ट लोगों के बीच में क्या इख्तिलाफात? ये इख्तिलाफात पैदा करने वाले वो मुट्ठी भर जनरल है जिन्होंने इस मुल्क में कभी भी प्रोटेक्शन नहीं की और मुहाफिज नहीं रहे। वो मुट्ठी भर जनरल ताजर बन गए हैं। उनको यूनिफॉर्म पहनने का हक नहीं। यूनिफॉर्म प्रिविलेज है, राइट नहीं है। और आपको ये अर्न करना होता है। एक एक लम्हा जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपको जस्टिस होना पड़ता है, आपको इंसाफ की साइड लेना पड़ती है। साजिशें करेंगे। आप अपने दुश्मनों के साथ बात करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रस्ट को कायम करने के लिए आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इक़दाम लेते हैं कि एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट पैदा हो। आपने तो जब से पाकिस्तान बना है, आपने CDB आपने इस्तेमाल किए हैं, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉइंग मेजर्स आपने इस्तेमाल किए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं किए। मरसू 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 धरती खातिर जेड़ो आ, धरती खातिर, बेटन खातिर। और मैं इमरान को ये बात याद दिलाना चाह रहा हूं
you rise by dharna and you fall by dharna. You rise by dharna, you fall by dharna. तुमसे पहले कई लोगों ने कहा था कि ये कुर्सी मजबूत है. तुम्हें ये पता नहीं कि इस कुर्सी के जड़ें जमीन में नहीं होती. इस कुर्सी की जड़ें GHQ में है. 2 दिन के तुम मेहमान हो सकते हो. अगर तुमने वादा किया हम नया पाकिस्तान बनाते हैं, ये नया पाकिस्तान है. तुमने बोला हमने तो सोचा था, तुमसे पहले किसी और ने भी नया पाकिस्तान का जिक्र किया था. और जब उसने नया पाकिस्तान का जिक्र किया तो हमने आधा मुल्क हमारा चला गया. जब मैंने तुमको सुना था नया पाकिस्तान बात करने की, मैं इधर उधर देख रहा था कि अब कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा है जो जाने वाला. और अपनी तरफ से तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की. हम नहीं कोशिश करते. हमने तो पाकिस्तान बनाया. सिंध ने तो पाकिस्तान बनाया. सिंध पाकिस्तान की मां है. हमने एक चीज बताई है जो हमने की हो. एक चीज, आपने एक कारोबार लगा रखा है. कभी आप 1 यूनिट बनाते हैं, कभी आप काराबाग डैम की बात करते हैं, कभी बगलियार डैम की बात करते हैं, कभी ज़ैद भुट्टो की लाश उठाते हैं, कभी बेनजीर भुट्टो की लाश उठाते हैं, कभी बशीर कुरैशी की लाश उठाते हैं, कभी आप जो है अकबर बुख्ती की लाश उठाते हैं. आपने ये कोई तरीका है यूनिटी पैदा करने का? हम कैसे, आप एक चीज बताइए जो आपने की हो, जिसमें आपने सिंध और बलोचिस्तान के लोगों को ओनरशिप की फीलिंग दी हो कि हम पाकिस्तान को ओन करते हैं. एक चीज बताइए. जब हम अखबार में पढ़ते हैं आपको आप ऐसा अमल करते हैं जिससे आप सिंध के लोगों को लूज करते हैं, बलोचिस्तान के लोगों को लूज करते हैं, गरीबों को चाहे कौन से भी सूबे में रहते हो उनको लूज करते हैं. आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर गरीबों और अमीरों के बीच में जो फर्क है वो आपके लिए न्यूक्लियर बम है. इससे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को नहीं हो सकता. और आपने सूबों के बीच में जो तकरार पैदा किया है, आप जाइए सिंध के अंदर, आप बलूचिस्तान के अंदर जाइए, आप पख्तूनख्वा में जाइए, आप बात कीजिए आर्डनरी लोगों के साथ. आप ईमानदार से सुनिए उनको. अगर कल खुदा न खास्ता कोई जंग होती है, अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होती है, मैं आपसे पूछता हूं, अपने ज़मीर को सुनिए, कितने लोग हैं सिंध के और बलूचिस्तान के जो अपनी जान देंगे? Not many. And is this your accomplishment? Is this what you call strengthening of Shame! Shame! आपको तो आगे आकर सबको गले से लगाना चाहिए. अगर आपको पाकिस्तान का कुछ थोड़ा भी एहसास है, आप पाकिस्तान के थोड़ा भी वफादार है, तो आपके अमल से थोड़े नजर नहीं आ रहा. हमारा अमल हमेशा इंसान दोस्त रहा. इसलिए ये blatant violation of moral rights, constitutional rights, क्योंकि आप इस ऑर्डिनेंस को, मैंने जैसे कहा, आप पकौड़े वाले कागज की तरह इस्तेमाल कीजिए. ये किसी काम का नहीं है. आपके काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है. और दूसरी बात ये कि अगर आपको सिंध को अपने साथ रखना है और धक्के नहीं देना है, सिंध बलूचिस्तान को धक्के नहीं देना है, तो get your act together. Get your act together. And Imran, I'm telling you, get your act together. Don't do these conspiracies. Don't do these conspiracies. Don't be part of these conspiracies. If you want to create your name in history, behave. Start behaving. Be people's friendly. Thank you.